Okay. Okay. आज पता नहीं पार्टिसिपेंट इधर नहीं आ रहे हैं राइट में, मुझे नहीं पता चल रहा है हाउ टू ब्रिंग दैट. Okay. So are you ready? Afif, Jitu, प्रिशा. प्रिशा तुम्हारा नाम ऋषा लिखा हुआ है इस पे, उसको चेंज करो ना, ऋषा को प्रिशा करो, पी ऐड करो. 10 ऋषा शेट्टी ऐसा दिखता है. ओके. तो कल के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले ऑल ऑफ यू टेक आउट आवर नोट्स, टेक आउट आवर नोट्स एंड कैन यू कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उस पे आ जाओ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाओ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आने के बाद आई वुड लाइक यू टू लेट अस मेक वन थिंग. माज आया क्या? आई कांट सी इन माय स्क्रीन. माज, आर यू देयर? यस सर. ओके माज, नंबर 1 पढ़ना चालू कर. 3-4 में तुमसे पढ़ाऊंगा. नंबर 1, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. The drift velocity of the free electrons in a conductor is independent of length of the conductor. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ये मेरे साथ लिख लेना, J अपॉन एन ई और I अपॉन ए एन ई. हाँ जरा मैं ये रिवीजन भी लेता. ओम, व्हाट इज एन इन दिस? विधि, व्हाट इज एन इन दिस? Afif, what is N in this? Unit volume. That is right. So यहाँ पे can you see VD is not depending on length. Can you see length आता ही नहीं picture में, and therefore A is the answer. 1 का what is the answer? A is independent of length of the conductor. Is independent of what? Is this clear? ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये आपको लिखना पड़ेगा. ये cross sign है, does not depend. मैं इसको क्या है, चलो लिख देता हूँ. Does not depend on length, and therefore A is the answer. कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको. कम टू नंबर 2. नंबर 2 बोलो. The direction of drift velocity in a conductor is So first of all remember, opposite to that of applied electric field, ये मैंने दिया था. फिर opposite to flow, positive charge. जो positive charge flow होते हैं उसके against में drift velocity जाती है. In the direction of flow of electrons. Therefore A, B, C all three are right. Therefore D is the answer. Look at D is the answer. You know applied electric field के against में electron move. This is the applied electric field. Alright, तो इसके opposite electron ऐसे भागते हैं. Movement of electrons. Electron के opposite में जाती है drift velocity. Therefore, all of these should be the answer. Then the drift velocity of free electrons in a conductor is Vd when the care current about is this? flow. Care about When the this? yes sir. Yes. Now come to number 3. The drift velocity of free electrons in a conductor is Vd when the current is flowing in it. If both the radius and current are doubled, the drift velocity will be. देखो याद रखो एक बात, प्लीज ध्यान से सुनो. पहले कुछ एमसीक्यूज में मैं टाइम ज्यादा लूंगा. इफ क्या लिखा है? If both the radius and the current are doubled.
radius and the current are doubled. एक बार बताओ, suppose if I say a statement like this, there is a person, let us say Afif. I say weight of Afif has doubled. So tell me, I should write W1 as 2W2 or W2 as 2W1. कौन सा bet correct है? Weight of Afif has doubled. What should I write? W2 equals to 2W1. W2 equal to नया weight is 2 times the original weight. Is this clear? किसको और अच्छी तरह explain करूं? इसको और अच्छी तरह explain करूं कि समझ गए हो? Weight becomes half. तो क्या लिखने का? नया weight is half of the original weight. एक मिनट समझ में आया तो मैं इसको बताऊं, नहीं तो एक और मेथड बताता हूं. Which method you like, this method or one more method you want to understand? Weight becomes twice. Weight becomes half. बोलो. अरे yes no please बोलो कुछ. Vidhi, is this clear or no? Yes, sir, clear. तो हाँ बोलना यार, हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? यस बोलने का खाली इतना. माज Yes, sir. अरे हाँ बोलो ना यार, हाँ या ना भी बोलो, मतलब जरूरी नहीं है हाँ बोलना, बट बोलो कुछ तो बोलो. आई वुड लव टू यू टू स्पीक. मैं बोलता रहूंगा बोलो, तुम लोग सब शांत बैठे, मैं लेक्चर ही नहीं लूंगा आगे. मैं बोलूंगा जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. यू टू क्या बोलते हैं जरा अच्छा लगता है व्हेन यू देयर इज सम टॉक गोइंग ऑन. ओके, अब मुझे बताओ रेडियस इज डबल, तो क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? रेडियस इज डबल, तो मैं क्या लिखूं? R1 equal to 2R2 या R2 equal to 2R1? So R2 is equal to 2R1. Equal to Afif will not 2R1. speak. And they say current are doubled. Current में क्या लिखूं? Afif नहीं बोलेगा, मुझे सिर्फ अभी मास बताएगा. Current is doubled. What should I write? I2 is equal to 2I1. That is right. मेरे को बोलने वाले बच्चे चाहिए क्लास में. The drift velocity will be, मतलब बोलते हैं VD1 VD, तो VD2 क्या होगा? अगर रेडियस को डबल कर देवे और करंट को डबल कर देवे. नाउ VD का फॉर्मूला क्या है? I अपॉन A के बदले I राइट पाई आर स्क्वायर. क्यों लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर? कोई बोलेगा? क्योंकि रेडियस की बात चल रही है. I A के बदले पाई आर स्क्वायर, N के बदले N, E के बदले E. मुझे बताओ क्या I चेंज हो रहा है सिचुएशन में? हमारी सिचुएशन में क्या करंट चेंज हो रहा है? यस नो? क्या करंट चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग? क्या करंट की चेंजेस हो रही है क्या? करंट को डबल किया जा रहा है, ट्रिपल किया हो रहा है कि यस और नो? Yes, sir. तो याद रखो जो चेंज होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है. तो इधर VD प्रोपोर्शनल, I ऊपर है इसलिए इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनल. टेल मी क्या पाई चेंज होगा? ये VD2 के टाइम पे पाई में मदर नंबर और पाई विल रिमेन कांस्टेंट. Remain the same. तो उसको नहीं रखेंगे हम लोग. क्या R स्क्वायर विल चेंज? क्या रेडियस चेंज हो रही है? Yes, sir. हाँ, तो इधर लिखेंगे R स्क्वायर. जहां पे जो है नीचे तो नीचे N और E ये भी चेंज नहीं हो रहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो VD प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R स्क्वायर, ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको हटा. तो टेल मी अब इन अपने को VD2 चाहिए, तो आई राइट VD2 by VD1. Proportional will become equal. क्या लिखूं? I2 by I1 लिखूं या I1 by I2 लिखूं? क्या लिखूं? I1 by I2 या I2 by I1? ये कल मैंने बताया था आपको. I2 by I1. अरे ओम समझ में आ रहा है कि नहीं? ओम मिस्ट्री. Yes, sir. अच्छा अभी तुम बताओ क्या लिखूं? रेडियस क्या? ओम विल टेल मी. इनटू R2 by R1. क्या लिखूं? बोल. R2 by R1. R2 by R1. R1. रूट कर रहे हैं कि क्यूब कर रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, खाली R2 by R1 सफिशिएंट है.
क्या लिखना है इसके Sir, आगे? R2 by R1 sufficient. सफिशिएंट है। और ये क्या है, वीडी का रिलेशन क्या है? आई अपॉन क्या लिखा है? R2. अरे वीडी का आई अपॉन क्या, R2 नहीं, आर स्क्वायर है उल्लू, ये R2 पड़ता है इसको। ये क्या है? R square. आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R2 by R1 लिखूंगा, रूट ऑफ R2 by R1 लिखूंगा या R2 by R1? ज्यादा गड़बड़ मत करो सर, क्या लिखूं? क्या Sir, लिखूं? root. रूट लिखूं? Root. अच्छा रूट लिखता हूँ। माँ तुम बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? Sir, R2 upon R1 square. स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मुझे अभी तीसरा, प्रीशा क्या लिखूं? क्या लिखूं? प्रीशा शेट्टी, देखो ध्यान रखो, ये वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टाइम पे साइन चेंज हो जाती है। 2 के सामने 2 नहीं आएगा, 1 के सामने 1 नहीं आएगा, 2 के सामने आएगा 1 और 1 के सामने आएगा 2, क्योंकि इनवर्सली है और स्क्वायर है, इसलिए हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अरे ओम, रूट कहां से लाया था? बोला रूट लिख डालो, चलो जाने दो, ये आर स्क्वायर है ना। अरे ओम, Yes, sir. तो ये मैंने 2 के सामने 1 क्यों लिखा? वो मेरे को समझ में नहीं आया, जरा बताओ वापस। ये 2 था, So because it is so because it is inverse directly proportional. ऐसे की तैसे एक थप्पड़ पड़ेगा। डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? वीडी आर Inversely. नीचे की ऊपर है? Inversely proportional. क्या समझ में नहीं आता है क्या? डायरेक्टली इनवर्सली, वो जो ऊपर रहता है। ए और ई का रिलेशन क्या है? ए और ई का रिलेशन, ए और ई का रिलेशन क्या है? Inversely proportional. तो क्या ये मालूम नहीं पड़ता तुम लोग को? ये सब थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा मैं कि डायरेक्टली क्या कब है, इनवर्सली कब है। ओके, नाउ देयरफॉर VD2, VD1 के बदले आई राइट VD, I2 by I1, I2 के बदले क्या रहे? 2I1, R2 के बदले क्या रहे? 2R1, I1 I1 R1 R1 gets cancelled, therefore VD2 by VD, this will become 2 into 1 upon 2 का square, that is 2 into 1 by 4, that is 1 by 2, and therefore VD2 will be VD by 2, and therefore VD by 2 का आंसर दिया है, C is the answer। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डोंट वेरी, ये एक बेसिक स्टार्ट हुआ है, बाद में इतना टाइम मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली की कहानी समझानी थी आपको, कॉन्स्टेंट को हटाना था। देखो एक बार एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD थी, फिर उस कंडक्टर की जो वायर था उसकी रेडियस डबल कर दिया, करंट को भी डबल कर दिया, वो बोलते नया वेलोसिटी कितना होगा? तो VD इक्वल टू आई अपॉन, ये फॉर्मूला है ना, एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर लिखा एनी, यहाँ पे पाई एंड ई आर नॉट चेंजिंग, खाली आई और आर चेंज हो रहा है। तो VD प्रोपोर्शनल के ऊपर है आई और नीचे है आर स्क्वायर, तो VD2 by VD1, 2 इसलिए लिखा क्योंकि अपने को VD2 चाहिए, इसलिए ऊपर VD2 रखा, इक्वल टू I2 by I1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है तो R1 by R2, और स्क्वायर है इसलिए मुझे स्क्वायर करना पड़ा, देयरफॉर VD2 by VD1 के बदले मैंने VD लिखा, I2 is 2I1, तो I2 के बदले मैंने इधर I2 के बदले 2I1 लिखा, इंटू R2 के बदले मैंने 2R1 लिखा, स्क्वायर था, I1 I1 R1 R1 gets cancelled, तो VD2 by VD equal to 2 into 1 upon 2 का स्क्वायर, that is 2 into 1 by 4, that is 1 by 2, फिर VD को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एक बार और रिपीट करूं, is this clear to everyone? Is this clear to everyone और बाउंसर है? Sir, clear. हाँ, copy this down।
फोर्थ में जाने के पहले मेरे को एक बात बताओ, रशिया इक्वल टू, याद है रशिया इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट किया था मैंने? जापान अपन और बराबर बोलो, रशिया इक्वल टू जापान अपन इंग्लैंड, जे अपन ई। ऊपर कौन है? अगर अर्थ का अपन देखें तो ऊपर इंग्लैंड है कि ऊपर जापान है? सर जापान। ऐसा अर्थ का अगर देखें अपन तो यहाँ पे किधर इंग्लैंड और यहाँ पे किधर जापान है, ऐसा है ना? कि अपना इंडिया इधर किधर है, ऐसा है ना? तो ये जरा उल्टा बोल दिया, इंग्लैंड अपॉन जापान। ये ध्यान रखना, जापान अपॉन इंग्लैंड नहीं था जो भी बोल रहा था, इट इज व्हाट, इंग्लैंड अपॉन जापान। देयरफॉर टेल मी व्हाट इज j इक्वल टू e अपॉन रो। व्हाट इज vd का फॉर्मूला? j अपॉन ne। j के बदले क्या लिखूं? e अपॉन रो n e, and therefore vd is directly proportional to e। एक बार फिर से समझो आराम से, फिर अपन फोर्थ करते हैं। पहले याद करो, मैंने जापान अपॉन इंग्लैंड नहीं बोला था, मैंने बोला था इंग्लैंड अपॉन जापान। डू यू रिकलेक्ट दिस अफीफ? अफीफ? Yes, sir. ओके, तो therefore जापान इक्वल टू इंग्लैंड अपॉन रो, रशिया। vd का फॉर्मूला क्या है? j अपॉन ne। तो j के बदले टेल मी क्या राइट, e बाय रो। j के बदले e बाय रो लिखेंगे तो e अपॉन रो ne, एंड therefore vd और e का रिलेशन। अभी फोर्थ पढ़ो मार्क्स। The drift velocity Vd of electron varies with electric field strength E as क्या है आंसर? कैन यू सी? इज दिस क्लियर? यस सर। ये हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? ओके, उसके बाद लेट अस डू नंबर 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, लाइक दैट विल डू। इसको मिटा दो इतना सब। अभी जो संडे को एग्जाम होगा उसमें ये वाले टाइप का पूछूंगा, इसमें मैं चेंज करूंगा, 3 टाइम 4 टाइम ये सब चेंज करके करूंगा, तो ये VD2 का आंसर बदलेगा। एक हिंट दे रहा हूँ, ये वाला मैं पूछने वाला हूँ सिमिलर टू दिस, इसलिए अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। लिख के प्रैक्टिस करना, VD/2 वापस प्रैक्टिस करना, आता है कि नहीं आता है। जो लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कभी नहीं कर पाएगा। ओके, देन नंबर 5 विल बी रेड बाय मास को ही पढ़ना, उसकी आवाज लाउड एंड क्लियर है एकदम। ओके, मास पढ़ो। when a current I is set up in a wire of radius r, the drift speed is Vd. If the same current is set up through a wire of radius 2r, then the drift speed will be. देखो, करंट फ्लो कर रहा था रेडियस r से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd थी। करंट वही फ्लो करना है लेकिन रेडियस 2r है, तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? तो व्हाट इज vd का फॉर्मूला? j अपॉन ne, दैट इज i अपॉन a ne, दैट इज i अपॉन, क्या लिखूं अभी, कोई बताएगा मेरे को? अभी आगे क्या लिखूं? So pi r square into दैट इज राइट। एंड देयरफॉर ये कौन बताएगा? खाली ये कौन बताएगा? क्या लिखूं इसमें? अपने प्रॉब्लम में जो चेंज हो रहा है वही लिखना है खाली। अपने हमेशा जो चेंज हो रहा है उसके बारे में लिखने का, डायरेक्टली और इनवर्सली, कांस्टेंट को लेने का नहीं। एक्सेप्ट अफीफ, पहले अफीफ को छोड़ के बाकी कोई भी आंसर कर सकते हैं। so I upon r2। हाँ, ये R2 क्यों पढ़ता है? ये R2 दिख रहा है क्या गधा? ये R2 है सॉरी सर, r square। क्या? ये मैं सिखाऊं तुम लोग को कैसे पढ़ने का? कल को बोलेगा इसको बोलेगा x3, x3 ये होता है। कौन था ये? सर मी जितेंद्र। कौन कौन बोल रहा है? जीतू? सर यस सर। अरे जीतू क्या है यार, आई एम सरप्राइज व्हाट यू आर टॉकिंग। सर इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, ओके, क्या लिखूं यहाँ पे?
देखो यहाँ पे I upon R square. दैट्स रॉन्ग. I is I. क्या I चेंज हो रहा है क्या? इधर I और 2I किया क्या? इधर I और I/3 किया क्या? ये भी I, ये भी I, तो कहाँ चेंज होगा? उसको नहीं लेने का यहाँ पे. जो चेंज होता है ना, सुन आफिफ क्या जीतू, जो क्वांटिटी चेंज होती है ना उसी को लेना है यहाँ पे. ये चेंज नहीं हो रहा है, करंट सेम है, तो इसको जाने दो. पाई सेम है, एन सेम है, ई सेम है, खाली रेडियस चेंज हो रही है. व्हाट शुड आई राइट? R square. टेल मी दैट हियर. Yes, sir. इज दिस राइट? So 1 No, upon Sir, R is it square. 1 R square? अब देखो मैंने कहाँ लिखा है. And therefore, what is VD2 by VD1? क्या लिखूं? इसको मुझे जीतू बताएगा. जीतू क्या लिखूं? जीतू Yes, sir. क्या लिखूं इसमें? VD2 So- by VD. So R1 upon R2 square. Very good. And therefore, VD2 by VD1 is VD. R1 is R. And what is R2? देखो R1 R है और R2 कितना है? 2R. इसका स्क्वायर. R cancel. That is 1 by 4. Cross multiply करो. And therefore, VD2 will be VD by 4. There you are. There you are. And therefore, the correct answer पांचवे का है. पांचवे का A is the answer. मैं ऐसा भी करने वाला हूँ. प्रॉब्लम में चेंजेस करूंगा. यहाँ पे करंट करूंगा और यहाँ पे रेडियस सेम रखूंगा. फिर आपको करना होगा. या करंट भी डबल करूंगा, रेडियस हाफ करूंगा, ऐसा सब करूंगा. आपको अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन. नंबर 8 पे आओ. कॉपी करने के बाद नंबर 8 पे आओ. डोंट लर्न बाय हार्ट. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एवरी न्यू एमसीक्यू में. नंबर 8 कौन पढ़ेगा? नंबर 8 को जाने. हाँ, चलो नंबर 8 करो. बोलो नंबर 8. A current of 1.6 ampere is passed through an electric lamp for half a minute. If the charge on the electron is 1.6 into 10 raised to minus 19, the number of electron passing through it is. देखो करंट इज 1.6 एम्पियर. Alright, pass through electric lamp for half a minute. Half a minute means time is 30 seconds. Alright, 30 seconds. If the charge on the electron छोटा e is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, the number of electrons कितना होगा? Tell me one thing. What is current? What upon what? देखो प्रॉब्लम बताता हूँ. एक बार एक कंडक्टर था, उसमें से 1.6 एम्पियर करंट पास हो रहा था. कितने समय में? 30 सेकंड में. चार्ज इलेक्ट्रॉन इतना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए वहां से? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? अफीफ, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ Charge. Correct. चार्ज. So, व्हाट charge. अपॉन व्हाट? व्हाट अपॉन व्हाट? So Q upon T. That's right. Therefore, there is a Q equal to I into T. What is charge on one electron? What is charge on one electron? E. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इतना होता है ना. तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यहाँ पे क्या लिखूं? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है छोटा ही, तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यहाँ क्या लिखूं? So N into E. So 1.6. n into 1.6 चलेगा. एंड therefore n का आंसर क्या आएगा? IT अपॉन छोटा e. I कितना है? 1.6. समय कितना है? 30. This is 1.6 into 10 raised to 19. ऊपर लिख दिया मैंने. ऊपर लिख दिया 10 raised to. तो 1.6 gets cancelled. Number of electron कितना आया? 30 into 10 raised to 19. Or that is 3 into 10 raised to 20. And therefore 3 into 10 raised to 20 यानी डब्बा is the answer. D is the answer.
कल मैं इसमें भी पूछा 1.6 के बदले आई चेंज द फिगर, ये टाइम भी बदल दूंगा और फिर आपको आंसर लाना है। टाइम भी बदलूंगा और ये भी बदलूंगा, और आपको ये समझ के करना है। देयर विल बी एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू ओपनली, यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो, मेरे को क्वेश्चन पूछ लो कुछ भी। ओम, ओम मिस्त्री, Yes, sir. देखो एक बार फिर से बताता हूँ। एक कंडक्टर था, उसमें करंट वाज 1.6 एम्पियर, समय वाज 30 सेकंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? वी नो करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, तो व्हाट विल बी चार्ज? करंट इनटू टाइम। But what will be total charge? If charge on 1 electron E, so what is charge on n electron? N into E equal to IT. So N will be I into T upon छोटा I. I के बदले मैंने लिखा 1.6, समय के बदले लिखा, हाँ I के बदले 1.6, समय के बदले 30, और E के बदले 1.6 into 10⁻⁻19 नीचे था, उसको मैं ऊपर ले गया 10⁻19. 30 into 10⁻19 is same as 3 into 10⁻20. Dabba is the answer. एक मिनट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ डाउट है मेरे को पूछो अभी से ही, क्योंकि आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस संडे टेस्ट। ये सब बदलूंगा, ये फिगर बदलूंगा, ये बदलूंगा, ये नहीं बदल सकता क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना ही रहता है। आगे बढ़ूं या थोड़ा बाउंसर है? सर सर समझ नहीं आ रहा है हम लोग को, सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन करो। ऐसा है? No, sir. अरे हाँ, तो बोलो ना यार, देखो क्या तुम लोग गर्म करते हो यार बिना बात के लिए। कोई बोलता नहीं है, ऐसा बोलता है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? जो करना है करो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट स्पीक, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं बोलने वाला नहीं हूं, ऐसा मत करो, बिकॉज आई विल नेवर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पूछने पे कोई बुराई नहीं है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू नंबर 9। नंबर 9 पढ़ो जरा। The wire of length L and resistance R is stretched so that its radius of cross section is halved. What is its new resistance? देखो, वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इस स्ट्रेच, उसको खींचा खींचा खींचा, सो दैट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। रेडियस कितना? हाफ हो गया, यानी क्या लिखूं R के बदले न्यू में? ये फर्स्ट ये सिचुएशन थी। सेकंड में क्या करूं? R को हाफ यानी क्या? सो डायरेक्ट 2R और R/3 R/2, यानी क्या लिखूं? हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया, R/2. R/2। ये लोग बोलते हैं व्हाट विल बी R2, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इफ L2 is n times L1, so what is R2? How many times R1? Anybody remembers this formula? लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल होता है कि क्या होता है? लेंथ ट्रिपल किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा? Anybody who can who remember? हाँ, The length and resistance is directly proportional, so both will increase. that's very bad answer, worst answer, worst, बहुत गंदा आंसर दिया है विधि आपने। मैंने ये नहीं किया था, ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था। इफ लेंथ इज इंक्रीज टू n times its original length, show that resistance becomes, anyone? अफीफ याद है आपको? फिर टेबल भी बनाया था मैंने, एक टेबल बना के बताया था कि देखो ये इतना तो ये इतना। अफीफ यू आंसर, अफीफ यू आंसर। Sir, I also have to revise. वेरी बैड, वेरी बैड। देखो खाली ध्यान रखना, if length becomes 2 times original length, then resistance becomes 2 square times original resistance, that is 4R1. If length becomes 5 times L1, new resistance becomes कितना टाइम? अब तो बताओ, अब तो बताओ। ये n तो ये n स्क्वायर, ये 5 तो यहाँ पे कितना टाइम होएगा? लेंथ को 5 गुना किया, Square R what?
अरे तुम उस दिन एब्सेंट थी क्या विधि? विधि, Yes, if sir. length becomes half of original length, what will be resistance becomes? 1/4. 1/4 of R1. If length becomes, let us say 25 times original length, so what will be resistance becoming? So 25 square R1. वापस लिखो जिस मैंने बताया है तुमको, ये प्रूफ किया है एक्चुअली, पूरा प्रूव किया था कि शो दैट इफ दिस इज r then n2 r n square times r1, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉरगॉट। ये पहली बार ऐसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम किया ऐसा लग रहा है आपको कि सर ऐसा लगता है याद ही नहीं आ रहा हमने किया है ऐसा पहला? सबको ऐसा लग रहा है? शायद मैं भूल गया हूँ, किसी और बैच में किया, ऐसा लग रहा है आपको? मैंने किसी और बैच में किया होगा, आपके साथ नहीं किया? No, sir, Anyone? we have done. तो क्या मतलब, क्या चल क्या रहे? तुम लोग पूरा दिन फ्री रहते हो, किधर जाना नहीं आना नहीं, पढ़ाई नहीं करते हो? This is the way you will not succeed. Hard work, you have to keep on working hard. और फिर तुम भी बोलते हो मैंने रिवाइज नहीं किया, अरे तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल स्क्वायर, लेंथ ट्रिपल तो रेजिस्टेंस ट्रिपल स्क्वायर, रेजिस्टेंस हाफ तो हाफ का स्क्वायर रेजिस्टेंस। क्या चल रहा है? This is really very bad. I had never expected that you will be so casual in approach of your studies. ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम देने वाला हूं, वो ध्यान रखना। ये कॉपी किया, अब 3 दिन में वापस बोलूंगा, बोलो सर ये आपने याद नहीं आ रहा है, आपने कभी किया था। ये सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 2-3 दिन बाद। अरे माज, ओम, प्रिशा, आम क्या, आम नहीं, ओम, ओम, अरे हाँ ना बोलना। Yes, sir. ये किया है, अभी समझ में आया? पहले तो नहीं किया था मैंने, फर्स्ट टाइम किया, समझ में आया? Yes, sir. ओके, यहाँ पे वापस चलते हैं। Tell me one thing. Do you remember volume remains unchanged? V1 equal to V2. Therefore, A1 L1 equal to A2 L2. Pi R1 square L1 equal to pi R2 square L2. Pi cancel. L2 upon L1 equal to, अरे ये मेरे को नहीं आता, क्या लिखूं? जरा बताओ मेरे को, देखो तुम लोग को मैथ्स भी आती है कि नहीं? प्रिशा बताएगी मेरे को। R1 upon R2. R1 upon R2. That's very good. किसका आंसर था ये? किसका आंसर था? Who had spoken this just now? अरे कौन बोला था? So me. Om. मी यानी कौन? नाम Om. ओम। मुझे बता ये राइट है? अगर मैं बोलूं x1 square y1 equal to x2 square y2, so what will be y2 by y1? क्या लिखूं? R1 upon R2 the whole square. अरे किधर R1 किधर है इधर यार, क्या The देख left रहा है? side. मैं लेफ्ट साइड नहीं, हाँ लेफ्ट साइड की बात कर। हाँ क्या ये सब क्या ये बस सिखाने का मेरे को? तुम लोग को तुम लोग ने 10th पास करके आए हो, ये नहीं मालूम पड़ता है तुम लोग को? स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर गायब हो गया। I should not take so much pain. R1 के बदले क्या लिखूं? R. R2 के बदले क्या लिखूं? R by 2. इसका स्क्वायर। R gets cancelled. 2 ऊपर आएगा। L2 is 4L1, but they are not asking L2, they are asking R2. Therefore, what will be R2? क्या लिखूं? मार्च, R2 क्या लिखूं? R1. R2 क्या लिखूं? मार्च, कितना? 4 square R1. मैंने क्या किया? मैंने लेंथ के रूप में पहले, रेडियस को करने से लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है?
लेंथ अगर n टाइम्स L1 होती तो रेजिस्टेंस विल बिकम n स्क्वायर टाइम्स। मैं ये वापस रिपीट करता हूँ, ऐसा सिमिलर पूछने वाला हूँ मैं, ये ध्यान रखना। ये नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछो, 10 बार पूछो। इधर देखो, एक वायर था, उसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस R था, रेडियस छोटा R थी। फिर उसको खींचा खींचा खींचा, इतना खींचा कि उसकी रेडियस आधी हो गई, R की R/2 हो गई। तो लोग बोलते हैं नया रेजिस्टेंस कितना होगा। ये फॉर्मूला भूलना नहीं, L2 is n L1 तो R2 will be n square times R1। तो V1 equal to V2, A1 L1 equal to A2 L2, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, पहले जो वॉल्यूम थी वही वॉल्यूम यहाँ रहेगी। A1 के बदले पाई R1 स्क्वायर L1, पाई R2 स्क्वायर L2, पाई पाई कैंसिल, तो L2 by L1 will be R1 by R2 का होल स्क्वायर। R1 is given as R, R2 वो लोग बोले हाफ हो गई थी तो R/2 का स्क्वायर, R कैंसिल, 2 का स्क्वायर which is 4, therefore L2 is 4 L1, but they are not asking length, they are asking what will be new resistance। तो लेंथ 4 गुना होने से रेजिस्टेंस 4 स्क्वायर, that is 16 times R1। एक बार और रिपीट करूं कि समझ गए हो, क्योंकि सिमिलर टू दिस आई एम गोइंग टू आस्क, डब्बा इज द आंसर। प्रिशा, प्रिशा छोटा डाउट है इसमें। जितेंद्र, जितेंद्र No, sir. श्योर? प्रिशा का आंसर नहीं आया मेरे को अभी तक। प्रिशा डाउट है कि नहीं है? प्रिशा, क्या बोलना है, बोली नहीं रही आज। चलो ठीक है, 9 के बाद बिल्कुल 10 पढ़ो। The SI unit of the EMP of a cell is देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था, व्हाट अपॉन व्हाट, ईएमएफ इक्वल टू, कल मैंने बताया ना W इक्वल टू W1 प्लस W2। कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ? हु कैन टेल मी? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताया था, व्हाट अपॉन व्हाट? So W upon Q. दैट्स राइट, W अपॉन Q। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। देयरफॉर जूल अपॉन कूलम कहां लिखा है, दैट्स द आंसर, देयरफॉर सी इज द आंसर। तुमको फॉर्मूला नहीं आएगा तो खत्म, मैटर खत्म हो जाएगा उधर, यू कांट डू दैट। फिर कुछ भी अगड़म से मांगना पड़ेगा कि ए बी सी डी। देन आफ्टर, अच्छा 10 के बाद 12 पे आओ। एक बात बता देता हूं 12 पे जाने के पहले, देखो रेजिस्टेंस चेंजेस विथ लेंथ, रेडियस, ये सब चेंज होता है ना, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, आर चेंजेस। बट ये और ये, व्हाट इज ये, कोई सिंबल किसके लिए यूज किया था मैंने, Specific resistance or resistance और ये किसके लिए यूज किया था? conductivity. Yeah, that is right. They are constant for given material. ये जरा लिख के रखो, 12 का आंसर कौन बताएगा, फिर मुझे बताओ, 12 पढ़ के बताओ। मार्क्स बेटा, if the length of a conductor is half, then its conductivity will be conductivity will not change, conductivity is constant, therefore conductivity will remain constant। अगर रेजिस्टेंस होता तो चेंज होता था, कंडक्टेंस होता था तो चेंज होता था, but these two will not change because they are constant for a given material, therefore they will remain unchanged, therefore the is the answer। ये खाली चेंजेस विद टेम्परेचर है, वो ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर।